structure which is function call stack. So whenever we hit any APIs or something that we have to do, then it goes into the function call stack. It stores that what functions we have to run for it, and then at back main thread pickups one stack. As this is a stack, it have basic properties of data structure of stacks. So whenever it stores functions, pop-up functions, so main thread, it assigns to the main thread that what functions we have to run, and from there main thread assign different functions to the worker threads, that what functions they have to do, and whenever a worker thread completes its functionality, it gives results to the main thread, and then main thread gives result to us. So basically in this slides this is explained, and we have error handling with JavaScript too. When error occurs in functions, the call stack provides trace of function calls that led to the error. So it has same functionality as logging, that which help us to do debugging, and then there is memory management. It stores function calls and setting up APIs. So we have learned about what is API and how it is used. Now I want to tell you about how we create an API. So first of all, we have to understand what is an API, then mean what functionality it have to do, and then we have to choose a right framework for that. There are many types of frameworks. In our case, we are using Node.js and plus Express mostly, but different peoples have different frameworks. Setting up your Node.js environment, then we have a boilerplate code of Node.js, which is available on its website. From there we have to just copy paste it in our project and do and give some passwords to it, and our server is creating your first API endpoint. So what is API endpoint is, it is a route on which we can hit so that our API works, or API function calls, and implementing a middleware. So what is middleware? So we have say two points in our structure. First is route, where function calls are hit, and then we have our response. I would like to invite Krush for explaining this part of presentation. So, good morning, promoted students. So, majorly there are 4 RESTful APIs in Node.js, and they are CRUD. These 4 APIs are called CRUD operations. सुनाई देना चाहिए, इन लोगों को समझ आना चाहिए. ये आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मुझसे भी पूछना है. ठीक है? So there are 4 main RESTful APIs which are called CRUD operations. CRUD means, C means in CRUD create, R means read, U means update, and D means delete. Yes. So here I will explain about how to create Simple Express.js server. So first of all, we install Node.js packages by npm init -y. Here this hash dash -y creates सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ठीक है? creates a file which have a license इन of. लोगों को समझाना है आपको, ये आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं. ठीक है. ठीक है? समझाना. So creating a simple Express server. First of all, we create a Express variable
in which we require express as a file, and then we do major operations like get, put, post, and delete, and patch. So here are the operations. This slide was not visible. तो हाँ इसमें सब बता देता हूँ, समझा इसमें से देता हूँ वो नहीं. So first of all we create a listening route, so that what does listening route means? So listening route means, as said by my partner Pranjal Sabra, there is a server code और port number, port name. आ रहा है समझ में? सभी को सुनाई दे रहा है? क्या एक्सप्लेन कर रहा है इधर लास्ट में? क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? Cloud operations, chart type code और ये सारे ठीक पीछे तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है. तो पहली जो API है वो है गेट API. सो हेयर गेट API मतलब अपन कोई भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अपन गूगल क्रोम पे हैं तो उसमें अपन डालते हैं youtube.com, तो वो एक गेट रिक्वेस्ट लगती है गूगल के सर्वर को, उसके डेटाबेस को, तो वो अपन को youtube.com का वो पेज ला कर देता है. लाइकवाइज पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है, इन पोस्ट रिक्वेस्ट वी क्रिएट अ पेज. फॉर एग्जांपल जब अपन एक सॉफ्टवेयर होता है पोस्टमैन करके, जब उसमें अपन कुछ अपडेट करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो अपन पोस्टमैन का यूज़ करते हैं किसी भी डेटाबेस की चीज़ को अपडेट करने के लिए. पुट अपडेट करता है डेटाबेस को, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है पुट में, वेयर एज पैच में सिर्फ जितना एरिया अपन को अपडेट करना है सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन अपन देते हैं. और डिलीट में अगर अपन को कोई डेटाबेस से चीज़ डिलीट करनी है पर्टिकुलरली, तो वो अपन डिलीट कर देते हैं डिलीट API से. सो एक तो मैम ये प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसमें मैंने गेट API का यूज़ बताया कि गेट API यूज़ कैसे होती है. तो इस प्रोजेक्ट में इसमें app.get एम्प्लॉय ना पता हुआ दिख नहीं रहा शायद, तो उसकी वजह से, बट app.get एम्प्लॉइज रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये एक सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स की app.get एम्प्लॉइज हमारा URL है बेसिकली, जैसे URL पे हमें मिलेगा एम्प्लॉइज, कॉमा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अपन रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्स आएगा. उसके बाद अपन एरर हैंडलिंग का यूज़ करके, इफ़ अगर एरर आता है आगे इन फ्यूचर, अपन जब एम्प्लॉइज़ पे जाते हैं और वहाँ पर डेटा नहीं होता है, तो अपन को एक एरर दिखेगा वहाँ पर, जो कि होगा जो भी अपन उसका डिजिग्नेटेड एरर होगा खुद का वेबसाइट का, वो अपन को शो होगा, जैसे कि 404 या स्टेटस वगैरह जो भी रहेगा, और फॉर्म पेज Implementation बता सकता है? इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पर जैसे अपन ने गेट रिक्वेस्ट लगाई यूज़र्स नाम के उस पर, यूज़र्स नाम के URL से जब अपन ने गेट रिक्वेस्ट लगाई, तो उसमें डेटाबेस में अपना ये शो कर रहा था उस पेज पे पर्टिकुलरली कि ये जो नेम्स लिखे हैं जो वो शो कर रहा था. बेसिकली अपन ने नाम स्टोर कराया है इसमें, और जो प्रोजेक्ट में मैं आपको दिखाया था वो उसमें अटैच मैं बाद में कर दूँगा, या फिर मैं आपको समझा दूँगा इसके बाद, या आप बच्चों को समझा दूँगा. पोस्ट रिक्वेस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि कोई चीज़ क्रिएट करने के काम में आती है, तो डेटाबेस में जैसा अपन को नई एंट्री क्रिएट करनी है कि मेरा नाम कुरुश अग्रवाल है, मेरा रोल नंबर 79 है, और मेरा ईमेल kurush@gmail.com है, और जेंडर मेल है, जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग है, और आईडी एक डिफ़ॉल्ट आईडी क्रिएट होती है हर बार जब अपन एक इंस्टेंस बनाते हैं डेटाबेस में. तो पोस्ट रिक्वेस्ट वही करती है. यहाँ पर अपन ने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है इधर राइट साइड में, यहाँ पर अपन ने नेम दिया है, ये सब दिया, और इससे यहाँ पर अपन ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है. एक ऐड करो यूजर, उसका जो डिटेलिंग है वो शो करो. मैम वो मेरे लैपटॉप में हाँ आपके लैपटॉप में लगे. आगे और क्या क्या एक्सप्लेन किए बता देना ना PPT में. कंप्लीट. आगे
एसिंक्रोनस हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि हम जब भी एक सिंक्रोनस ऑपरेशंस, व्हाट आर सिंक्रोनस ऑपरेशंस? सो whenever we use synchronous operations, our input output streams are blocked in case of handling synchronous operations, and whenever that happens, what it means is a single thread, in case of single thread, our single thread only works over one input output, can work on one input output stream, and can leverage the power of only one input output streams. So whenever we hit a functions, it get busy in a single function and can't handle multiple instances of a function or multiple different functions at a single time. So how we can leverage the power of asynchronous operations is, there are multiple architectures for that. First is event driven architecture, in which case a event is popped whenever we request a function. ऐसा कोई टास्क इंप्लीमेंट किया जो सिंक्रोनस हो यहाँ पे आपको करें? मैम पूरा Node.js एसिंक्रोनस है। और सिंक्रोनस सिंक्रोनस के केस के अंदर बेसिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंक्रोनस होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, सिंक्रोनस टास्क और एसिंक्रोनस दोनों का अलग अलग वही तो एग्जांपल है। जैसे हम एसेंस का मतलब है कि हमने डिफरेंट थ्रेड्स बनाई हैं और उसके अंदर एक एक फंक्शंस हम रन करा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेशन का एसिंक्रोनस टास्क जैसे कि सर्वर हो गया, अब हम एक सर्वर की एक API रिक्वेस्ट आई और उसी वक्त पे दूसरे यूज़र ने एक और कौन से ऐसे एरिया में ये इंप्लीमेंट होता है? पूरी राउटिंग के अंदर होता है। मुझे दोनों के एग्जांपल रिसर्च कर दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँगा तो वो आगे ये परफॉर्मेंस आगे प्लेटफॉर्म फॉर द रीडिंग ऑफिशियल Node.js डॉक्यूमेंट। पीपीटी किसके कौन से टेम्पलेट यूज करिए या डायरेक्टली एआई से बनाइए? टेम्पलेट यूज़ करी थी और थोड़ा बहुत को मतलब बेसिकली जो चीज़ पता थी हमको वो चीज़ हमने डाली थी, उसने थोड़ा सा कंटेंट ब्रशअप करके डाल दिया, मतलब ये AI ने। आगे सबसे पहले तो अगर किसी को इम्प्लीमेंटेशन आपका भी ऐड नहीं किया है। इम्प्लीमेंटेशन सारे एड एक्सप्लेन करना है तो वो प्रोजेक्ट भी अलग से और किसी को अगर इससे ज़्यादा जानना है तो वो ऑफिशियल Node.js के डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली अब मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा बेसिक ऑफिशियल स्ट्रक्चर क्या होता है कंपनीज के अंदर Node.js का सर्वर का। तो सबसे पहले इसमें होता है एक पब्लिक, हमारी तरफ से जो होता है पब्लिक फोल्डर होता है, सोर्स फोल्डर होता है, .env की फाइल होती है, .env की सैम्पल फाइल होती है, गेट इग्नोर की फाइल होती है, प्रिटियर इग्नोर की फाइल होती है,